Hello students, how are you all? Fine? Okay. So in previous class, we have discussed two case study regarding to the income from salary. Now in this class, also I am going to discuss the next case study regarding to the salary. We know income from salary is the first head of the gross total income. And we also know gross total income is given under section 80B subsection 5. क्या कहता है? The sum of income of 5 heads are called gross total income. The sum of income of 5 heads are called the gross total income. First head, income from salary. Second, income from house property. Third, income from business and profession. Capital gain. Fourth and fifth, residuary heads of the income, that is income from salary. If the sum of income of 5 heads are included, then finding value will be treated as a income from salary. So dear students, it is my humble submission before all of you. Now I am going to elaborate, I am going to discuss, I am going to solve the next case study of the income from salary. So now I, Dr. Lal Babu Jaiswal, welcome to all of you in this class, in my class, the subject income tax law and practice. So the question is, Mr. X is employed with AB Limited. Mr. X is employed with AB Limited on a monthly salary rupees 25,000 per month and an entertainment allowance and commission rupees 1,000 per month. The company provides him the following benefits. First, a company owned accommodation is provided to him in Delhi. Furniture costing rupees 2,40,000 was provided on 1st August 2024. A personal loan of 5 lakh on 1st July 2024, on which it charged interest 6.75 per annum, 6.75 per annum. The entire loan is still outstanding. Assume SBI rate of interest on 1st April 2024 was 12.75% per annum. His son is allowed to use a motorcycle belonging to the company. The company had purchased this motorcycle for rupees 60,000 on 1st May 2021. 1st May 2021 को परचेज किया कंपनी ने और उसको द मोटरसाइकिल वाज फाइनली सोल्ड टू हिम ऑन 1st August 2024 for rupees 30,000, that is after 3 years, 21, 22, 22, 23, 23, 24. तो करीब आफ्टर 3 years, 21, 22, 22, 23, 22, 24, there are 3 years. After 3 years, the motorcycle is transferred. Dear students, professional tax in this question rupees 2,000. Compute the income from salary. Compute the income from salary of Mr. X for the assessment year 25-26. Assuming Mr. X exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under the section 115 BAC sub clause 1A. So dear students, it is my humble submission in this क्वेश्चन कंपनी ने दिल्ली में उसको
एक एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है। इस एकोमोडेशन की जो कॉस्ट है वो इट विल बी कंप्यूटेड ऑन द न्यू रूल। ये न्यू रूल गवर्नमेंट ने 23 में इंप्लीमेंट किया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 23 से वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन को कंप्यूट करने का नई गाइडलाइन आ गई है और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यह पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन accommodation value is rupees is calculated on the basis of new provision. So now professional tax is paid by Mr. X rupees 2000. So in this question the rent free accommodation will be calculated on the basis of such types of rule which was issued by the government in the month of September 2023. Value of rent free house. So now I am going to solve the question. In this question basic salary rupees 25,000 per month. तो 25,000 पर मंथ के रेट से 12 मंथ का 3 लाख हो गया। ओके, कमीशन 1,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का 12,000 हो गया। इंटरटेनमेंट अलावेंस 1,000 पर मंथ के हिसाब से आपका 12,000 हो गया। In this question, entertainment allowance is not deductible under section 16 subsection Roman 2 because Mr. X is not government employee. Okay student, X क्या है? Government employee नहीं है। तो next, rent free accommodation. Rent free accommodation is computed on the basis of new rule, जैसा पहले बताया है, और इसका रेंट फ्री कंप्यूटेशन 50,425 आया। ये 50,425 कैसे आया? रेंट फ्री एकोमोडेशन के केस में रूल है 15% ऑफ सैलरी फॉर 5 मंथ, 7.5% for 7 months because house is situated in Delhi। और ये मान लिया गया इन दिल्ली द पॉपुलेशन इज एक्सेस ओवर टू 25 lakhs। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन इट इज एज्यूम्ड पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज एक्सेस टू 25 lakhs। तो देन फॉर 5 months 15% of salary means, and for 7 months 7.5% of salary means will be considered as a value of rent free accommodation, rent free unfurnished accommodation. For furnished 10% the value of furniture etc will be included. If these facilities are hired, if these facilities are taken on lease, so then actual rent or actual lease rent which is paid by employer will be included in the value of unfurnished rent free accommodation to find out the furnished accommodation. So dear friend, in this question salary means बेसिक पे यानी बेसिक सैलरी, कमीशन, इंटरटेनमेंट अलावेंस विल बी कंसीडर्ड फॉर द सैलरी मीन्स। तो देखिए यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड 15% ऑफ 3,24,000। ये 3,24,000 आया कहां से? 3 लाख बेसिक पे, 12,000 DA, 12,000 इंटरटेनमेंट अलावेंस। तो 3,24,000 का 15% फॉर 5 मंथ। तो आप कंप्यूट कर सकते हो 20,250 आया, और फिर 3,24,000 का 7.5% फॉर 7 मंथ, तो 14,175 आ गया। तो 20,250 और 14,175 इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो आ जाता है 34,425।
तो 34,420, देखिए आप देख सकते हैं 34,425 इट इज द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन. This computation is based on the new rule of for furnished accommodation. यदि फर्नीचर एक्सेट्रा दिया रहता है तो 10% द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा विल बी इंक्लूडेड. तो बच्चों 10% वैल्यू फर्नीचर की वैल्यू 2,40,000 का 10% फॉर 8 month. Why 8 months? Because in this question we can say a company owned accommodation is provided to him in Delhi. Furniture costing rupees 2,40,000 was provided on 1st August. तो अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ? 8 तो हुआ. 8 महीने का देखिए हम कंप्यूट किए तो आपका 8 महीने का यहाँ देखिए देख सकते हैं 2,40,000 का 10% फॉर 8 month. तो 2,40,000 का 10% कंप्यूट करेंगे 24,000 12 मंथ का, तो 1 मंथ का 2,000 और 8 मंथ का 2,000 इंटू 8 इज इक्वल टू 16,000. तो 34,425 द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन में 16,000 फर्नीचर एक्सेट्रा का जोड़ लेंगे तो 50,425. दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन. और फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू को देखिए, ये फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू को हमने ऐड कर दिया. फर्नीचर में फर्नीचर की 10% वैल्यू और अनफर्निश्ड की वैल्यू में हमने इसको ऐड कर दिया. तो दिस इज द 50,425 विल बी ट्रीटेड एज अ वैल्यू ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन. ओके, आइए नेक्स्ट. Interest on personal loan 22,500. We can see in this question loan is taken by the employee from employer on 1st July 2024. Loan amount is 5 lakh. लोन पर इंटरेस्ट 6.75% चार्ज किया जा रहा है, जबकि यही लोन बाजार में लेने एसबीआई से जाता तो एसबीआई का रेट है 12.75. तो 12.75 मार्केट में मिल रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर बोला हेलो एम्प्लॉई, आप मेरे एम्प्लॉई हो, हम आपको कंसेशनल रेट पर दे रहे हैं. तो कंसेशन कितना हुआ? 6%. कैसे? 12.75 माइनस 6.75 इज इक्वल टू 6. और जो 6% है, ये जो 6% है 6% इट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ परकिसिस्ट. इट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ परकिसिस्ट. और परकिसिस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द वॉल्यूम ऑफ सैलरी. तो 5 लाख का 6% जुलाई से मार्च 9 महीने होते हैं. कैसे सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना हुआ ना. अरे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने. तो 5 लाख इंटू 6% फॉर 9 मंथ. तो वी कैन सी इन द नोट्स, देखिए वी कैन सी इन द नोट्स, देखिए आप यू कैन सी द वैल्यू सेकंड में यू कैन सी ये वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन के नीचे सेकंड पॉइंट वैल्यू ऑफ परचेज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन 5 लाख का 6% फॉर 9 मंथ. अरे भाई 5 लाख का 6% 30,000 होता है 1 ईयर का. 1 ईयर का 30,000, 9 मंथ का 30,000 इंटू 9/12. अरे 12 से डिवाइड कर दीजिए और 9 से मल्टी कर दीजिए तो आ गया 22,500. क्या कंफ्यूजन है? Any confusion if you feel, तो without registration you can call. Okay, तो देखिए 22,500 it is the value of purchase of interest on personal loan with concessional rate. यूज ऑफ मोटर कार ये कैसे आया? 6,000 का 10% फॉर 4 मंथ. क्योंकि मोटर कार के केस में
आप देख सकते हैं डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार के केस में ये क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हिज सन इज अलाउड टू यूज, देखिए प्लीज, हिज सन इज अलाउड टू यूज अ मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू द कंपनी. द कंपनी हैड परचेज दिस मोटरसाइकिल ऑन 1st May 2021. The motorcycle was finally sold to him on 1st August. अब अगस्त को ट्रांसफर कर रहा है, उसके पहले अगस्त तक, 1 अगस्त तक उसको यूज किया होगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने हुआ ना. अरे अगस्त नहीं लेंगे भाई, 1st को तो ट्रांसफर दिया है. तो यूज आप मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी है 60,000, उस पर 10% की परक्यूसिस्ट मानी जाती है जब यूज होता है. तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वर्किंग नोट में देखिए लिखा हुआ है, वर्किंग नोट में यहाँ पर क्वेश्चन में भी देख सकते हैं 60,000 मोटरसाइकिल की कॉस्ट, 10% 1 साल का 6,000 आएगा, 6,000 आएगा ना. हाँ भाई, 4 महीने का 4/12 तो 2,000 आया ना, ये 2,000 रुपये यूज मोटर कार हो गया. अब इसी मोटर कार को उसने अगस्त महीने में ट्रांसफर कर दिया है, कहा ले जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, ले जाओ. तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स. सर 3 इयर्स कैसे हुआ बताइए ना. देखिए क्वेश्चन में देख सकते हैं, उसने मोटर कार को परचेज किया है 21 में और ट्रांसफर किया है 24 में. 21 से 24 3 साल होता है कि नहीं होता है, कैसे 21 to 22, 22 to 23, 23 to 24, 3 साल हुआ. तो 3 साल तक उसका डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा. देखिए कैलकुलेशन देख सकते हैं, 60,000 का 10% SLM मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो 1 साल का 6,000, 3 साल का 18,000, 60,000 से 18,000 लेस हो गया, कितना बचा 42,000. 42,000 के असेट को जिसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू 42,000 थी उसको 30,000 में ट्रांसफर कर दिया. तो 42,000 माने 30,000 इज इक्वल टू 12,000. 12,000 देखिए ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल है. समझ में आ गया. एनी क्वेश्चन. ग्रॉस सैलरी 4,25,100. अब 4,25,100 जो ये हुआ, ये ग्रॉस सैलरी, इसमें डिडक्शन चैप्टर 6 डिडक्शन 16 का 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 बिकॉज दिस क्वेश्चन इज सॉल्व अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम. Employment tax या professional tax 2,000 is also deducted. तो then finding value will be treated as a income from salary. Income from salary, ठीक है ना. तो 3,58,925, 3,58,925 it is the income from salary. So now I am going to solve the further question with the further case study. Yes, this question is related to Mr. Balaji. Balaji employed as a production manager in Beta Limited. Furnishes you the following information for the year ended 31st March 2025. उनकी बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी उनकी 31 अक्टूबर तक 50,000 पर मंथ है. 31 अक्टूबर के बाद नवंबर महीने से उनकी 50,000 से 10,000 बढ़ जाती है, 60,000 रुपये होती है. और इसमें लिखा है सैलरी इज ड्यू. देखिए क्वेश्चन है, प्लीज क्वेश्चन देखिए. सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है अगस्त की सैलरी 31 अगस्त को, सितंबर की सैलरी 30 सितंबर को, अक्टूबर की सैलरी 31 अक्टूबर को. So you can see the question in the salary. The salary is up to 31 अगस्त 50,000, अगस्त के तो नहीं अक्टूबर तक 50,000, अक्टूबर के बाद नवंबर से 60,000 रुपये. DNS allowance, you can see DNS allowance is 40% of basic salary. Bonus equal to 1 month salary. 1 month salary का के इक्वल बोनस हो गया. पेड क्या किया गया? अक्टूबर 24 में किया गया है. अक्टूबर में 1 महीने के बस दिया गया है. और अक्टूबर महीने की जो सैलरी है बच्चों 50,000 है. नवंबर से 60,000 हुआ है, तो बोनस को कितना मिला उसको? 50,000 मिला. हाँ, प्लस डीएनएस अलावेंस अप्लीकेबल फॉर दैट मंथ. डीएनएस अलावेंस हम देख सकते हैं 40% है. तो अक्टूबर महीने की सैलरी 50,000, 50,000 का 40% डीए, 50,000 का 40%,
20,000 आता है, 20,000 50,000 में जोड़ लेंगे तो 70,000 बोनस है। 50,000 बोनस नहीं होगा, 70,000 70,000 बोनस होगा। कंट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉयज टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ 16% ऑफ बेसिक सैलरी। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 12% तक एग्जम्प्ट होता है, 12% के ऊपर टैक्सेबल होता है। इस क्वेश्चन में 16% किया गया है तो 4% 4% विल बी टैक्सेबल। ओके, तो नाउ प्रोफेशनल टैक्स 2500 है, जिसमें से 2000 एम्प्लॉयर ने पे किया है। जब एम्प्लॉयर पे करेगा तो एम्प्लॉयर का पहले ग्रॉस सैलरी इट विल बी इंक्लूडेड फर्स्ट इन ग्रॉस सैलरी, तो देन इट विल बी अवेलेबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन थर्ड अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजिम। If the employee adopt the default tax regime, the professional tax is not deductible. Okay, facility of laptop and computer was provided to Balaji for official and personal use. If the facility of laptop and computer is provided, तो such types of facility of computer and laptop will be tax free facility. तो मोटर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मोटर कार का मालिक एम्प्लॉयर है। क्यूबिक कैपेसिटी एक्सीड 1.660 लीटर, दिस इज द लार्ज मोटर कार प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय को दिया गया। कब दिया गया है? 1 नवंबर को दिया गया है। बिल्ट फॉर बोथ एंड ऑफिशियल पर्सनल यूज, नहीं नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने का दिया गया। तो लार्ज मोटर कार के केस में 2400 पर मंथ पर केसेस विल बी कंसीडर्ड। For 5 months, 2400 into 5 is equal to 12,000. 12,000 will be treated as a value of per cases. Okay. Repairs and running expenses 45,000 from 1st November 2024 to 31st March 2025 were fully made by the employer. The motor car was self-driven by the employee. ड्राइवर नहीं मिला है, सॉफ्टवेयर नहीं मिला है, खुद एम्प्लॉय कहता मैं चलाऊंगा, मुझे चलाने आता है, तो चलाओ ना भाई, कौन कहता मैं चलाऊं? हाँ, तो ड्राइवर फैसिलिटी नॉट प्रोवाइडेड। अगर ड्राइवर फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर तो 900 विल बी आल्सो एज्यूम एज अ वैल्यू ऑफ परचेसेस। तो 2400 प्लस 900, बट 900 इज नॉट टेकन एट ऑल बिकॉज ड्राइवर इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अब करा लीव ट्रैवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रेन 1 डॉटर एज 7 years और ट्विन दो जुड़वा बच्चे हैं, उनको 3 साल की एज है। कास्ट ऑफ एयर टिकट इकोनॉमिक क्लास रिइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉय ₹30,000 फॉर अडल्ट्स एंड 45,000 फॉर 3 चिल्ड्रेन। तो कुल 30,000 प्लस 45,000 इज इक्वल टू 75,000। 75,000 इज अ लीव ट्रैवल कंसेशन। बालाजी इज एलिजिबल टू अवेल एग्जम्पशन दिस ईयर टू एक्सटेंट इट इज परमिसेबल इन लॉ, यानी दिस विल बी नॉट इंक्लूडेड इन द वॉल्यूम ऑफ सैलरी बिकॉज इट इज एग्जम्प्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ। अब कह रहा कंप्यूट द इनकम, कंप्यूट द सैलरी इनकम, कंप्यूट द सैलरी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बालाजी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, एज्यूमिंग ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स regime provided under section 115 BAC subsection 1A. It means the Balaji is adopting the optional tax regime, old tax regime. So in this slide we can see the total solution of the question. Basic salary 7 month का 50,000, 5 month का 60,000, तो 3,50,000 प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 6,50,000। डीएनएस अलावेंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी 6,50,000, उसका 40% निकालेंगे, आपका आ जाएगा 2,60,000। बोनस बताया था अक्टूबर मंथ की सैलरी का ही दिया गया प्लस डीए, तो अक्टूबर मंथ की सैलरी 50,000 प्लस 40%, 50,000 का 40% 20,000, तो 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 4% टैक्सेबल विल बी टैक्सेबल बिकॉज 4% ऑफ द सैलरी मीन्स में क्या डीए बेसिक पे लिया जाएगा, तो 6,40,000 50,000 का 4%, हाँ तो हो जाएगा आपका 26,000। प्रोफेशनल टैक्स विच इज पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन फ्रॉम सैलरी, तो 12,000 ये प्रोफेशनल टैक्स 2,000
मोटर कार 5 मंथ दिया गया है। कैसे? फॉर मोटर कार में क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि मोटर कार जो प्रोवाइड किया गया है उनको वो प्रोवाइड किया गया है नवंबर महीने में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने का हुआ सर, तो 5 महीने का निकाल लिया। क्वेश्चन देख सकते हैं। मोटर कार को हम यहाँ देखें परक्यूसिव स्टाफ मोटर कार 2400 फॉर 5 मंथ, तो 12,000 हो गया। इन सभी को ऐड कर लिया। दिस विल बी कॉल्ड द ग्रॉस सैलरी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स 2500 विल बी आल्सो डिडक्टेबल। तो 9,67,500 विल बी ट्रीटेड एज अ वैल्यू ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो दिस इज द नोट्स which are related to the solution of the question. In this question notes we can see each and every part of the solution of the question. So in this question Mr. Balaji is eligible for the benefits of exemption of the leave travel concession because Balaji is adopted the optional tax regime. Mr. Balaji is benefited with rupees 75,000 as a leave travel concession, and for himself, his wife, 3 children, and the journey was undertaken by the economic class airfare. The restriction imposed for 2 children, बाकी लेकिन 2 यहाँ 3 है, 3 नहीं क्योंकि एक ट्विन है। 3 children is not applicable in the case of multiple birth which take place after first child. तो इसलिए लीव ट्रेवल कंसेशन विल बी एग्जम्प्ट. इट इज नॉट टेकन एट द टाइम ऑफ कंपुटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम सैलरी. इन दिस क्वेश्चन इनकम फ्रॉम सैलरी इज 9,67,500. it will be called as a income from salary and it will be taxable. So dear student, I hope you all got each and everything regarding to the solution of this question. If any confusion, any query, so please call me without any hesitations. So again, thanks to all of you for your nice listening, for a nice cooperation, and again thanks to all of you.